Hello students, welcome you all to our first session of our chapter number 16, that is Sustainable Management of Natural Resources. Students, in this chapter we are going to study regarding natural resources, its types, and then we will study that how to manage those natural resources. Okay, so let us start with this chapter. First of all, let us understand the definition of natural resources. What do you mean by natural resources? Natural resources are the resources available in nature. The resources which are available in nature are called natural resources like air, water, sunlight, soil, minerals, forests, wildlife, etc. Natural resources are of two main types. They are renewable and non-renewable natural resources. Natural resources are of two types. The first type is renewable natural resources and the second type is non-renewable natural resources. You all know the meaning of the word renewable. The resources which can be used again and again, which can be renewed again and again, it is called renewable natural resources. And the resources which cannot be used again and again, which cannot be renewed again and again, they are called non-renewable natural resources. Okay? See the exact definition. Renewable natural resources, those resources which can be replenished in a short period of time. Replenished means which can be obtained again in a short period of time, like air, water, sunlight, forest, etc. They are all what? Natural, renewable natural resources. And what are non-renewable natural resources? Those resources which cannot be replenished in a short period of time, which cannot be obtained in a short period of time, like what? Coal, petroleum, natural gas, metals, etc. They cannot be obtained in a short period of time. कोल पेट्रोलियम को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. ओके, सो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. दे कैनॉट बी यूज्ड अगेन. एक बार आपने कोल या पेट्रोलियम यूज़ कर लिया, वी कैनॉट यूज इट अगेन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल natural resources. Now human activities produce a lot of waste materials which are thrown away into the environment. We human beings, especially we human beings only, out of all the living creatures, we human beings have produced a lot of waste materials and we dump these waste materials in the environment. These wastes cause a lot of pollution and they cause pollution of natural resources like air, water and soil. We have created air pollution, water pollution and soil pollution also. You can see in this pic कि एक नेचर ऐसा है जहाँ पे एकदम क्लीन एटमॉस्फेयर है. ओके, और एक ऐसा नीचे आपको पिक्स दिख रहे हैं जहाँ पे एकदम पोल्यूशन है. ओके, तो वी ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड दिस पोल्यूशन. अंडरस्टूड? नाउ व्हाट आर द 3 R's to save the environment? Which are the main 3 R's to save the environment? Actually there are 5 R's. There are 5 R's given in our textbook, page number 268. There are 5 R's. Initially 3 R's था. Okay, अभी 5 R's में convert कर दिया गया है. तो which are the main 3 R's out of that? I will also teach you the next 2 R's. But पहले के 3 R's हम देख लेते हैं. The 3 R's to save the environment are reduce, recycle and reuse. Reduce, recycle and reuse. ये 3 R है. इसके अलावा और 2 R है, refuse and repurpose. Refuse and repurpose. You have to refer page number 268 of your NCERT textbook students. तो यहाँ पे 3 R's के बारे में मैं पहले डिस्क्राइब करूँगा और 2 R भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. ओके, the first R which we are going to discuss is reduce. Reduce means what? Reduce का मतलब कम यूज़ करना. Okay, it means using less of natural resources and avoiding wastage of natural resources. है ना? That much you must use only that much जितना आपको काम में है, बाकी आपको वेस्ट नहीं करने का. So reduce means what? Means to use less. You can save electricity by switching off unnecessary lights and fans. हम कई बार देखते हैं कि हमारे घरों में दिन में भी लाइट चालू होते हैं. Okay, it is unnecessary. Okay, so you can switch off those lights and fans. You can save water by repairing leaky taps.
जब टैप लीक हो रहा होता है हमारे घर पे या स्कूल्स में, तो उसको रिपेयर करके हम उसको वाटर सेव कर सकते हैं। डू नॉट वेस्ट फूड, जितना चाहिए उतना ही बनाओ, उतना ही खाओ। ओके, अननेसेसरी फूड को वेस्ट नहीं करो। ओके, सो बाई रिड्यूसिंग the use of natural resources we can save a lot of natural resources. So this is the first R, reduce. Then comes recycle. Recycle करना मतलब उसको यानी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देना। रिसाइकल मीन्स द मटेरियल्स लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स एक्सेट्रा यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अगेन एंड अगेन। ओके, जैसे हम जानते हैं कि जो पेपर होता है उसको रिसाइकल किया जाता है और न्यू पेपर बनाया जाता है। जो न्यूज़पेपर आप देखते हो ना, द न्यूज़पेपर इट इज़ द रिसाइकल्ड पेपर। अंडरस्टूड? जो हम लोग पेपर सब बुक्स सब यूज़ कर लेते हैं वो रद्दी में दे देते हैं, उसका रिसाइकलिंग होता है और उसमें से फिर से पेपर बनता है और वो पेपर न्यूज़पेपर में इन सब में काम आता है। तो बाय रिसाइकलिंग द पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स एक्सेट्रा, ओके, द यूज़ ऑफ न्यू पेपर, जैसे हमने पेपर का रिसाइकल किया, ओके, तो नया पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि जितने तुम न्यू पेपर्स बनाओगे उतने आपको ट्रीज काटने पड़ेंगे, बिकॉज वी ऑल नो दैट पेपर इज मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ द वुड ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री। तो न्यू पेपर को आप रिसाइकल करके उसको वापस से यूज़ करते रहो, तो दैट इज कॉल्ड रिसाइकल। ओके, मेकिंग न्यू थिंग्स इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग और एक्सट्रैक्टिंग न्यू पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल्स। आप देख सकते हैं ये जो एग्स रखने का जो केस है ना, एग्स रखने का केस, वो भी क्या है? रिसाइकल्ड है वो भी। अंडरस्टूड? वो भी क्या है? रिसाइकल्ड है वो। अंडरस्टूड? तो वो रिसाइकल्ड वाले पेपर में से ही बनता है एग रखने का केस। तो मतलब इस तरह से आप क्या कर सकते हो? रिसाइकलिंग कर सकते हैं। नाउ कम्स रीयूज। रीयूज मीन्स व्हाट? यूजिंग अगेन एंड अगेन सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमने जैम का बॉटल खरीदा या फिर पिकल्स का, अचार का बॉटल खरीदा। ओके, अब जैम खत्म हो गया तो यू कैन यूज़ दैट बॉटल फॉर स्टोरिंग सम अदर फूड ग्रेन्स। उसमें आप नमक स्टोर कर सकते हो, हल्दी स्टोर, उसको साफ करके रख लो और कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो। मीन्स बार बार यूज़ करना सेम चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड रीयूज़। ओके, वी हैव सीन आवर मदर्स, है ना, वो सब लोग क्या करते हैं, हमारा बॉर्नविटा का डब्बा आता है वो बड़ा साइज़ का होता है, दैट कैन बी यूज टू स्टोर अदर थिंग्स ऑल्सो वंस इट इज़ यूज्ड। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड रीयूज़। ओके, तो व्हाट वी हैव सीन reduce, then we have seen recycle, and then we have seen reuse. Okay, now let us discuss regarding refuse. Now students, the fourth R is refuse. यहाँ पे मैंने 2 R के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे स्लाइड में नहीं दिखेगा, बट यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। refuse means say no to the things the people offer you that you don't need. Once you don't need anything, you can say no to it. You can refuse regarding that thing. For example, plastic carry bags. Our Prime Minister has already declared, है ना, he has asked us to minimize the use of plastic things. Okay, so we can refuse the use of plastic carry bags. Okay, we can say no to the shopkeeper that I don't want your plastic bag. I have brought my own cloth bag. हमने carry bag हमारा लेके आए हैं cloth वाला और उसका। अंडरस्टूड? तो यू कैन से नो। रिफ्यूज़ करना मतलब आपको मना करना है। रिफ्यूज टू बाय द प्रोडक्ट्स दैट कैन हार्म यू एंड दैट हार्म्स द एनवायरनमेंट। ऐसी चीज़ें नहीं खरीदो, ऐसी चीज़ें नहीं लो, नहीं खरीदो जो आपको नुकसान करे, एनवायरनमेंट को नुकसान करे। एंड से नो टू सच थिंग्स। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग? सो रिफ्यूज़ मीन्स उन चीज़ों को ना करो जो तुम्हारे काम की नहीं है, जो तुमको हार्म करेगी, जो एनवायरनमेंट को हार्म करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लास्टिक की कोई भी चीज़ नहीं खरीदोगे। आजकल बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक में ही मिलती है हमको, तो उनको तो खरीदना ही पड़ेगा। बट हम कुछ चीज़ों को तो मना कर सकते, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जो कैरी बैग्स होते हैं ना, थैलियाँ जो होती है वो सिंगल यूज़ वाली होती है। ओके, उनका बार बार आप यूज़ नहीं कर सकते, तो उनको आप मना कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्यूज़। एंड द फिफ्थ आर इज़ रीपर्पस। Repurpose means what? This means when a product can no more be used for original purpose, think carefully and use it for some other useful purpose. जैसे कोई हमने एक ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदा, अब उसका काम उससे और अभी नहीं हो रहा है जिस चीज़ के लिए हमने उसको खरीदा है, तो तुम इसके बारे में थोड़ा सोचो और उससे आप दूसरी कोई चीज़ बनाओ जो तुमको ज़्यादा यूज़फुल हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कुछ क्रॉकरी टूट जाते हैं ना, जैसे अपने चाय के कप या प्लेट टूट जाते हैं ना, उसका जो चाइना क्ले होता है ना, दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस डिज़ाइंस। आप उससे अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हो, उससे अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स बनती है। ओके, इट कैन बी यूज्ड टू डेकोरेट आवर फ्लावर पॉट्स। फ्लावर पॉट्स के ऊपर आप वो चाइना क्ले के पीसेस चिपका के आप उसको डेकोरेट भी कर सकते हो, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड रीपर्पस।
Okay students, so these are the 5 R's. Shall I name it again? Reduce, reuse, recycle, refuse and repurpose. In this way we can save our environment. These are the 5 R's to save our environment. Okay students, now let us go for our 16.1 topic, that why do we need to manage our resources. Okay, we have seen that we have lots of natural resources. Okay, now why do we need to manage our resources? हमको क्यों हमारे resources को manage करना है, हमको क्यों उसको संभाल के रखने का है, क्यों? तो why do we need to use our resources carefully? Let us see. All the things we use and consume are obtained from natural resources. Due to increase in population, industrialization and urbanization, the demand for natural resources is increasing and their availability is limited. We all know students that continuously there is an increase in the population of our country. Similarly, the industrialization has also increased. Industrialization means new industries have been opened, many new industries. And urbanization means people are moving towards cities, city areas are going on increasing, and due to this the demand for natural resources is increasing. More and more natural resources are being used, but we all know that the quantity of natural resources in the nature is limited. नेचुरल रिसोर्सेज की क्वांटिटी तो लिमिटेड है नेचर में, बट उसकी डिमांड जो है कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है. सो देर इज़ अ नीड फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. यस ना, क्योंकि अवेलेबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कम है, लिमिटेड है, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. इसके लिए जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको प्रॉपरली मैनेज करके रखना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. एंड हाउ कैन वी डू दैट मैनेजमेंट? द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज consists of what? First point, judicious use of natural resources and avoiding wastage of natural resources. What do you mean by the word judicious use? Judicious use मतलब जब ज़रूरत हो तभी तुमको उसको यूज़ करने का, जब ज़रूरत हो तभी तुमको उसको यूज़ करने का. अंडरस्टूड? अननेसेसरली वेस्टेज नहीं करने का. वी हैव टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज जुडिशियस यूज ऑफ natural resources and avoiding wastage of natural resources. Second point, long term planning for the use of natural resources so that it lasts not only for the present but also for the future generation. हमको नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से प्लान करना है उसके यूज़ को कि हमारे लिए खाली वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है. वी ह्यूमन बींग्स व्हाट डू वी थिंक कि भाई हमको सब कुछ मिल जाना चाहिए. वी डोंट थिंक कि हमारे जब फ्यूचर जनरेशन्स आएंगे उनके लिए भी हमको सब कुछ बचा के रखना है. हम कोल और पेट्रोलियम का इस तरह से यूज़ कर रहे हैं जैसे अभी हमारे साथ ही हम पूरा ख़त्म करने वाले हैं इसको, है ना. जिस तरह से हम कोल और पेट्रोलियम को यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि अभी आज के बाद जो और सेकेंड जनरेशन आएगा ना, हमारे बाद का जनरेशन, उनको कोल क्या है पता ही नहीं होगा. दे विल नॉट बी एबल टू सी कोल. अंडरस्टूड? तो हमको इस तरह से उसको यूज़ करना है, लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करनी है कि भाई फ्यूचर जनरेशन को भी पता चले कि ये सब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. ओके, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज should not be for the benefit of a few people but should be distributed equally for all. What is the meaning of the word exploitation of natural resources? The use of natural resources. हम नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं ना, टेकिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एयर में से, वाटर में से, अर्थ में से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हम ले रहे हैं वो कुछ ही लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए. इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली फॉर ऑल, वो सबके लिए होना चाहिए. बट ये तो होता ही नहीं है. देर आर फ्यू पीपल हु यूज़ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फ्यू सेक्शन ऑफ पीपल लाइक पुअर पीपल और द डाउन ट्रोडन पीपल. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट ये तो हमने देख लिया. थर्ड पॉइंट फिर से रिपीट हुआ है. नाउ फोर्थ पॉइंट, व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज वी शुड ऑल्सो प्लान फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट सो दैट नो डैमेज इज कॉज्ड टू द एनवायरमेंट, है ना. वी शुड यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज टू ओनली दैट एक्सटेंट. उतने ही हद तक नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करो कि आप बाद में उसको सेफली डिस्पोज कर सको, उसको सेफली आप क्या कर सको, डिस्पोज का वेस्ट को आप डिस्पोज कर सको, ताकि एनवायरनमेंट को क्या नहीं हो, डैमेज नहीं हो. While extracting and using natural resources, we should also plan for the safe disposal of the waste. आप वेस्ट को भी आराम से कहीं डिस्पोज कर सकते हो. इसको ध्यान में रख के ही आपको नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने का. ओके स्टूडेंट्स, by this we end our today's session.
Today we started with our chapter number 16, that is sustainable management of natural resources. We have seen the definition of natural resources and its various types. Then we have seen the 5 R's which are needed to save the environment, and then we have seen why do we need to manage our resources and how can we manage our resources कि हमने ये 4 points भी देखे. Okay, we will continue with our next topic in the next session. Till then, thank you students.